Okay, good morning student. Today we will do the chapter number 5 data handling bar graph. Okay, let us discuss the sums of your chapter exercise 5 because it is related to your graph. That's why I am showing you in the book. So you have to read the bar graph. This is the first thing. How to read the bar graph? Look at the book. This is a question. Read the adjacent bar graph and answer the following question. Question is, what is the expenditure on rent? So it is given that in y-axis it is expenditure. How much? Start from 0, 500 rupees, 1000 rupees, 1500 and so on. है ना? Now look at the rent. ये food item में इतना खर्च हुआ. So क्लोथिंग में इतना एक्सपेंडिचर है, रेंट में इतना है, एजुकेशन में इतना है और मिसलेनियस में इतना है. अंडरस्टूड माय पॉइंट. नाउ रेंट पे कितना एक्सपेंडिचर है? लुक एट दिस. ये जहाँ तक जा रहा है तो कंपेयर इट विद वाई एक्सिस. तो इट इज़ 3000. यू कैन ऑल्सो पुट अ स्केल और पेंसिल. इट इज़ 3000 हियर. सो आंसर इज रुपीज 3000. अंडरस्टूड माय पॉइंट. हाउ टू रीड द बार ग्राफ. नेक्स्ट पार्ट इज on which item is the expenditure maximum and how much it is. So maximum is clearly it is this one. So it is food item. Answer is food item. On food item the expenditure is maximum. And how much is there? It is 3500. Okay. So within third part, what is the expenditure on education and clothing together? So clothing and education का total करना है. Clothing का it has 1000 and education it has 2000. So what is the total? 1000 plus 2000 is 3000. Okay. Next part is on which item is the expenditure minimum. Clearly minimum किस पे है? Clothing पे. So आप ये भी लिख सकते हो how much it has 1000 rupees. Understood my point? These are the answers of first question. Okay, you have to write like this in your notebook. Okay, don't ask me that you have to write in book. Do these answers on the notebook with the complete diagram. Okay, now let's talk about your fifth question. Okay बच्चे, I am explaining now fifth question. Rest of the questions you have to do it yourselves. Try it yourself. If you have problem you can ask me on WhatsApp. Now look at the fifth question. Study the bar graph. Okay, this is a bar graph. Look at the bar graph carefully. It is a revenue generated in crores, rupees in crores. This is Taj Mahal, and this first one represent 2007, second one represent 2008, third one represent 2009. So this is a revenue generated by Taj Mahal in 2007, 8 and 9. Similarly by Qutub Minar, and third one is Agra Fort. Okay, now look at the questions. First question is, what does the bar graph shows? So बच्चे, bar graph shows that the revenue earned by the three monuments from 2007 to 2009. Second question is, which monuments earn the maximum revenue? So from the graph it is clear. Also from the figures, this Taj Mahal graph is highest. So answer is Taj Mahal. Okay. Third one is, what is the total revenue earned by the three monuments from 2007 to 2009? So what you will do, you will add up all the values. You will add up all the values like this in rough space and write down the answer. So answer is 108.39 crore. Now fourth question is, in 2009 how much more revenue was earned by the Taj Mahal by the Qutub Minar? तो हमने ये फाइंड करना है कि ताज महल कितना ज्यादा है कुतुब मीनार से. तो क्या करेंगे हम? डिफरेंस ऑफ ताज महल एंड कुतुब मीनार का रेवेन्यू बाय इन 2009 ओनली. याद रखना इन 2009 का डिफरेंस है ये सिर्फ. ओके, सो आंसर इज 4.46 वैल्यू डिफरेंट minus these two values. Now let's talk about the fifth one. Fifth part is
determine the average. Average how to find? Add up all the values divided by number of things. So there are 3 numbers, so add up all the values of 2007 earned by the revenue earned by the 3 monuments and divided by 7. Understood how to find 2007? You will add up all the values of 2007 only of all 3 monuments and divided by 3, and you will get the answer. Okay, similarly you can find the other parts by yourself. Okay, if you have, you can ask me on WhatsApp. Okay, let us discuss the other questions. Now let us discuss 7th one. Okay, in 7th question you have to draw the bar graph. Draw the bar graph. Bar graph I have already told in Zoom video that how to make bar graph is like buildings, like rectangles, like this. एक गैप छोड़ के फिर एक रेक्टेंगल, फिर एक गैप छोड़ के एक रेक्टेंगल, ऐसे बनते हैं बार ग्राफ. ओके, अंडरस्टूड. नाउ हाउ टू मेक द बार ग्राफ ऑफ दिस गिवन क्वेश्चन. क्वेश्चन है अ सर्वे वाज कंडक्टेड, एक्टिविटी आफ्टर स्कूल्स गिवन है और उसके नीचे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी गिवन है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल टेक द बार ग्राफ. ओके, ऑन दैट बार ग्राफ यू विल मेक द लाइंस लाइक दिस. This is called x-axis and this is y-axis. You know, you have already done. So at this point, okay, like this L shape. Understood? Make this point as a 0. Make this point as a 0 point. Now remember this one thing. जो आपको ऊपर दी है जैसे टीवी, play sports, use computer. These will come in x-axis, horizontal line. ओके, सो तो फर्स्ट वन आएगा. तो पहले एक काम करो, स्केल लेके इक्वल डिस्टेंस पे आप लाइंस लगा लो. सपोज आई हैव डन लाइक दिस 1 2 3 4 5 6 7 8, जितनी आपकी वैल्यूज है उसके अकॉर्डिंग. ओके, बिकॉज वी हैव टू मेक द बार ग्राफ. नाउ मेक द see the value. These are the activities. Okay, and first activity is watch TV. So एक फर्स्ट आपने छोड़ना है. पहला आ गया वॉच टीवी, सेकंड वन आ गया प्ले स्पोर्ट्स. दीज आर द एक्टिविटी. तो ऐसे चल रही है. थर्ड वन इज यूज कंप्यूटर. तो थर्ड वन इज यूज कंप्यूटर. फोर्थ वन इज विजिट फ्रेंड्स. विजिट फ्रेंड्स. उसके बाद आ गया ये आप एक छोड़ोगे. देन आ गया लास्ट वन है टॉक ऑन फोन. ओके, सो नेक्स्ट गिवन है आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट. सो नंबर ऑफ स्टूडेंट आपके यहां पे आए. याद रखना जो वैल्यूज होती है ना, वैल्यूज वो हमेशा वाई एक्सिस पे आती हैं. आप ध्यान से देखने वाली बात ये है कि इट स्टार्ट फ्रॉम 120, जो मिनिमम है वो 65 है एंड मैक्सिमम इज 175. तो हाउ टू मेक इट? मेक द स्केल ऑफ 20. तो आप यहाँ पे 0 से अगर आप 20 से शुरू करोगे तो ये बहुत ऊपर तक चला जाएगा. तो एज यू हैव सीन के मिनिमम वैल्यू 65 है, तो यू विल स्टार्ट फ्रॉम 60 डायरेक्टली 60, और उसके बाद 20 का गैप रखो. 60 80 100 देन 120 देन 140 देन 160 देन 180. ये आपके ग्राफ के ऊपर ऐसी लाइन से ड्रॉ ऑलरेडी बनी होती है, बस आपने हाईलाइट करना है उसके ऊपर. नाउ क्योंकि देखिए ध्यान से, ये जो ग्राफ है इसका गैप 20 है और जो फर्स्ट वाला गैप है दैट वन इज 60. तो आप इस गैप को कवर अप करने के लिए यहाँ पे क्लिंक लगाओगे, क्योंकि ये इसका गैप 60 है. अगर ये 20 होता फिर कोई जरूरत नहीं थी इसकी क्लिंक की. इसका मतलब ये है कि 0 to 60 जो गैप है वो हमने इसमें कवर अप कर लिया. अंडरस्टूड माय पॉइंट? नाउ हाउ टू मेक द बार ग्राफ. फर्स्ट वन है वॉच टीवी. कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है? 120. तो आप स्केल रख के यहाँ पे 120 तक लेके जाओगे. 120 यहाँ तक है तो 120, और जो फर्स्ट
याद रखना यहां से शुरू नहीं करना, फर्स्ट जो गैप आपने छोड़ना है इतना, उसके बाद सेम डिस्टेंस पे ये रेक्टेंगल ड्रॉ करनी है, समझ गए? ये रेक्टेंगल आपने शो करनी है ऐसे 120 के एक्ट के लिए। ओके, आप चाहे ऊपर मेंशन भी कर दो, इट इज 120। नाउ नेक्स्ट वन इज प्ले स्पोर्ट्स, दिस इज आल्सो 120, देन आल्सो गिव अ स्पेस, इतनी सेम होनी चाहिए डिस्टेंस शुड बी रिमेन सेम, तो दिस इज आल्सो 120। Take a scale and mark the bar graph like this. This rectangle shows the play sports. कि इतने बच्चे स्पोर्ट्स प्ले कर रहे हैं, हमें ग्राफ से दिख रहा है ना क्लियरली। थर्ड वन है यूज कंप्यूटर इज 175, तो 175 तक लेके जाएं। सो सी दिस इज 20, तो हाफ करोगे 10 तक हो जाएगा, तो 10 का भी हाफ करोगे ये 175 हो जाएगा, तो 175 स्केल से आपका एग्जैक्ट आएगा। आप स्केल रख के करोगे ना, क्योंकि मैं तो बोर्ड पे बना रहा हूं, तो स्केल रख के करोगे तो एग्जैक्ट आएगा। दिस इज 175, कैसे करना है? दिस इज 20, गैप कितना है 20 का, तो हाफ हो जाएगा 170, तो 170 और इसका भी हाफ कर दो 175, ये रहा 175। दिस रिप्रेजेंट योर नंबर ऑफ स्टूडेंट हु आर यूजिंग कंप्यूटर्स। ओके, फोर्थ वन इज विजिट फ्रेंड्स, दैट वन इज 65 ऑन, तो 65 कितना है? ये 70 हो गया, 70 का भी हाफ नीचे आ जाओ, ये 65 कितना है, तो 65 से स्केल रख के ये रेक्टेंगल ड्रॉ कर दो, तो ये हो गया 65। ओके, लास्ट वन इज 170, तो इस बार ग्राफ को 170 तक ले जाओ, तो इससे नीचे आएगा थोड़ा सा, ये इतना 170, ये इतना, तो draw it 170. Okay, now you have to remember 2-3 things. You have to write down these things, number of students on this side, and जो आप रिटर्न पार्ट में है वो नीचे लिखना है like this, और अपने एरो भी शो करने हैं। एंड लास्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज यू हैव टू राइट डाउन द स्केल, कि हमने कौन सा स्केल यूज किया इस ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए। देखिए हमने कहा कितना गैप रखा है इसमें 20 का, तो इट मीन यू विल राइट कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 20 स्टूडेंट्स। ये किसके अलाउंग है? हमने किसके अलाउंग बनाया जी? y एक्सिस के अलाउंग, तो आप यहां पे ऊपर लिख दो अलोंग y एक्सिस कि 1 यूनिट जो है, 1 यूनिट मींस ये 1 यूनिट, ये 1 यूनिट, तो यहां तक लिंक आ गया, ये छोड़ दो, बाकी यूनिट देखो कितने हैं, ये 20 के गैप में ना। अगर आप इसका 10 का गैप लिखोगे तो आप वहां पे 10 लिखोगे, अगर आप इसका 5 का गैप लिखोगे तो आप 5 लिखोगे, अगर आप 1 2 3 लिख रहे हो सिर्फ 1 2 3 4, तो आप वहां पे 1 लिखोगे। अंडरस्टूड माय पॉइंट? ये 3 चीजें लिखने और ये ग्राफ ड्रॉ करना बहुत जरूरी है, ये तो याद रखना, बाकी क्वेश्चन भी हमने ऐसे ही रिप्रेजेंट करने हैं। अंडरस्टूड? Now after drawing this bar graph, you have some questions in your book. First question है, which was the most preferred activity after school? तो most preferred कौन सी है? साफ ही दिख रहा है, ये सबसे ज्यादा है, तो most preferred कौन सी है? use computer। तो फर्स्ट आंसर आ गया use computer। Oh sorry, you will write proper in line के the most preferred activity is computer। most preferred activity after school is computer। Okay, second one is how many students were surveyed and all, तो कितने students हैं total, तो add up all the students 120 plus 120 plus 170 and write down the answer। Okay, to add up all the students। Third question है, if 5 more students preferred talk on phone, अगर हम फोन पे 5 स्टूडेंट्स इंक्रीज कर दें, यानी कि अगर ये 175 कर दें इसको, ठीक है, और 5 लेस स्टूडेंट लाइक देम विजिट फ्रेंड्स, विजिट फ्रेंड में 5 लेस कर दें, ये 65 था पहले, अब इसको 60 कर दें, तो ये इतना होगा, है ना। अब क्वेश्चन क्या है हमारा, देन फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक वाचिंग ऑन टीवी
ओके, वॉचिंग ऑन टीवी कितनी है 120. यू हैव टू फाइंड द रेशियो. वॉचिंग ऑन टीवी है 120 टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु एंजॉयड विजिट फ्रेंड. विजिट फ्रेंड में कितने रहेंगे अब 60. तो इन दोनों की रेशियो फाइंड आउट करनी है वॉचिंग टीवी की और विजिट फ्रेंड की, राइट. तो इनकी रेशियो कितनी आ गई 120. साफ ही दिख रहा है, 0 से 0 कट गई, 6 to 12, 2:1 is the answer. Okay everyone, this is your 8th question. Rest of the question you can do it yourself. These are very simple. Okay, now in 8th question you have to make the bar graph. I have made it. So things are given: mode of transport, car, bicycle, walking, school bus and private bus, and these are the number of students. कि कार कितने जाते हैं बस पे, वॉकिंग पे, और स्कूल बस पे कितने, प्राइवेट बस पे कितने. अंडरस्टूड. हाउ टू मेक द बार ग्राफ आई हैव ऑलरेडी डिस्कस. सो आई हैव टेकन अ स्केल ऑफ कितना गैप है 100 का. तो राइट डाउन अलोंग y एक्सिस. ओके, 1 यूनिट इज इक्वल टू 100 students. So don't remember to do it carefully. Okay, now so car has 250, bicycle is 150, walking 150, school bus is 660 and private bus is 390. So make the bar graph accordingly. Now your questions are: which mode transport used by the were used by the least number of students. कितने सबसे कम बच्चे कौन क्या यूज कर रहे हैं. तो आंसर है वॉकिंग एंड बाइसाइकिल. ओके, आई हैव रिटन इन द फर्स्ट पार्ट. सेकंड पार्ट है व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यूज्ड बाय द स्कूल बस. कि स्कूल बस की टोटल स्टूडेंट्स में से कितनी परसेंटेज है. अंडरस्टूड माय पॉइंट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको टोटल स्टूडेंट्स फाइंड करने हैं. ऐड अप ऑल द वैल्यूज. ऐड करोगे टोटल आ जाएगा 1600. सो टोटल स्टूडेंट आ गए आपके 1600. सो आपने परसेंटेज फाइंड करनी है स्कूल बस की. तो स्कूल बस है आपके 660 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इनटू 100. इसको डिवाइड करोगे, कैलकुलेशन करोगे, आपका आंसर आ जाएगा 41.25. ओके एवरीवन, दिस इज योर 13th क्वेश्चन इन व्हिच यू हैव गिवन the number of girls and number of boys are given according to section wise. Okay, 7th A, B, C and D. Now how you will represent. See देखो, girls and boys को आप इकट्ठा इसमें गैप नहीं शो करोगे. Understood? Because this is called double bar graph. This is called double bar graph. Double bar graph हम दो क्वांटिटी को एक में शो करते हैं कि गर्ल्स बॉयज एक ही सेक्शन के ना, दैट्स व्हाई. तो सेकंड सेक्शन के गर्ल्स बॉयज ऐसे, देन 7C के गर्ल्स बॉयज, देन 7th D के गर्ल्स बॉयज. सो अकॉर्डिंग टू योर वैल्यूज मिनिमम आपकी 25, 20 और मैक्सिमम 30 है. दैट्स व्हाई आई हैव टेकन द स्केल ऑफ 5. सो राइट डाउन स्केल अलोंग y एक्सिस दैट 1 यूनिट इज इक्वल टू 5 स्टूडेंट्स. सो इसमें आप गैप 5 का रखोगे. सो फर्स्ट वन है गर्ल्स आपकी 25 है 7A की, और बॉयज है 20. तो इसके अकॉर्डिंग आप बना दो बार ग्राफ. हाँ, गर्ल्स और बॉयज को रिप्रेजेंट करना है डिफरेंट. ओके, चाहे आप एक को शेडिंग कर दो, ओके, एक को वैसे रख दो, सिंपल एज यू विश, या आप जैसे मर्जी कर सकते हो. तो आई हैव रिप्रेजेंट गर्ल्स ऑन दीज शीट्स एंड बॉयज को प्लेन में रखा है. Okay, so these it represent girls, it represent boys. Numbers are given 30 and 50. Okay, this is 25 and 20, and last one is 20 and 29. So this is a double bar graph which I have represented in front of you. So it has also parts. Questions है इसके parts में. First question आपको explain कर देता हूँ. In which section is the difference is in the number of boys and girls is minimum. तो ये डिफरेंस सबसे मिनिमम कब है. तो अगर आप यहाँ पे वैल्यूज लिख लोगे तो आपको इजी हो जाएगा. इसका डिफरेंस 5 है ना, जैसे इसका डिफरेंस 15 है, 30 माइनस 15, इसका डिफरेंस 5 है ना, और इसका डिफरेंस ये 20 है, ये 29 है, तो इसका डिफरेंस 9 है. तो सबसे मिनिमम कब आ रहा है
7th A and 7th C में. Understood my point? So similarly, you have to do other parts by yourself because these are related to this graph. Okay, and there are only 15 questions in this exercise, so you have to do these all sums by together by yourself. And if you have problem, you can ask me on WhatsApp. Thank you everyone.